गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। हमारा टारगेट ये है कि वी हैव टू बी ड्राइव द एक्सप्रेशन a mod is equal to the square root of ax square plus ay square. The question is that in the examination, it belongs to the long question answer. Its marks is the 7 marks. Or the question is that drive an expression for magnitude of the resultant of two vector by rectangular component method. इसका अब हम जो डेरिवेशन करेंगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। Addition of vectors is characterized into two ways. Number one is the graphical method, and another name of the graphical method is the head to tail rule, and you have already studied in the metric class head to tail rule. Now the second one is the rectangular component method. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जमा किया जाता है। सपोज वी हैव वेक्टर a and वेक्टर b. The direction of a is this and direction of b is this. You know about that, it is called the head and it is called the tail. और हम बात करेंगे, हम इसे फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करेंगे और इसे हम सेकंड वेक्टर कंसीडर करेंगे। ये भी इसकी हेड है और ये इसका टेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी टेक अ फर्स्ट वेक्टर। हमने पहले पहला वेक्टर ले लिया। अब we join the second vector in such a way that the tail of the second join the head of the first. Tail of the second join the head of the first. यानी कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से कनेक्ट किया तो हम ये आपके पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Now the resultant is that the resultant is a vector which is the combined effect of these two vectors, and resultant is a vector which starts from the tail of the first and ends at the head of the last. अब यहाँ पे तो चूंकि दो हैं तो यहाँ पे आपने इस तरीके से कर दिया, लेकिन just for example, if you have three vectors just like that, this is the vector A and this is the vector B and this is the vector C. You have three vectors and C. These are the free vectors just like that. तो first we take a first vector. This is the vector A. सबसे पहले हमने vector A लिया, फिर हमने सेकंड वेक्टर को इस तरीके से ज्वाइन किया कि सेकंड की जो टेल है वो पहले वेक्टर की हेड से कनेक्ट हो गई, और जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही रखना है। दीज आर द फ्री वेक्टर्स, ना तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही इनकी मैग्नीट्यूड। दे कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ जस्ट लाइक दैट। अब द अनदर वेक्टर सी, इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? वी ज्वाइन द टेल ऑफ द सी टू द हेड ऑफ द बी। फर्स्ट ए, B and C. अब आपने देखा कि रिजल्टेंट क्या है? अगेन इज अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड एंड्स एट द हेड ऑफ द लास्ट। दोनों के एरोज जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइन होंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वन और मोर देन Now let us start the derivation. The question is that drive an expression for magnitude of resultant of two vector by rectangular component method. So we want to have the several steps in your book. Step number 1. सबसे पहले हमें ये आपकी बुक में different steps हैं कि suppose you have a vector a1. Consider we have vector a1 which makes an angle theta 1 with respect to positive x-axis. And we have another vector a2 which makes an angle theta 2 with respect to x-axis. This is vector a2. We want to join these two vectors by the rectangular component method. The step 1 is that, first step is that resolve a1 into their rectangular कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। हमें पता है कि a1x is equivalent to the a1 cos theta 1 and a1y is equivalent to the a1 sin theta 1। ठीक है, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स थे। आपने सबसे पहले a1 को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, आपके पास ये a1x हो जाएगा और ये a1y हो जाएगा।
सेकेंड स्टेप इज दैट, स्टेप नंबर 2 इज दैट कि रिजॉल्व। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिए डायग्राम की तरफ आप कि आपके पास वेक्टर A1 है, आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, ये पहला एरो है और ये दूसरा एरो है। सेकेंड स्टेप में करना है कि वी वांट टू ऐड A2। अब हमने A2 को उसके अंदर रखना है, तो वी यूज द हेड टू टेल रूल। वी ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड टू द हेड ऑफ द फर्स्ट here, and we have the another platform, this is the theta 2, and second step में क्या होगा, resolve A2 into their rectangular, A2 into their rectangular components। अब आपने A2 को भी उसके rectangle, just for example this is A2x, ये आपके पास A2x हो गया और ये आपके पास A2y हो गया, इसकी डायग्राम ये। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ की इसकी टेल से A1 की रिजल्टेंट इज अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द A1 एंड एंड्स एट द हेड ऑफ द लास्ट। आप देख रहे हैं कि अभी से हमें, आप एग्जाम में भी आप इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स को यूज कीजिएगा, तो आपकी डायग्राम जो है वो बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी। थोड़ा सा हो गया, इसको स्ट्रेट कर लीजिए। आप स्केल से बनाएंगी, मेरे पास तो स्केल नहीं है इस वक्त, तो ये इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे कि R इज इक्वल टू द A1 प्लस A2। क्लियर? तो हम बाद में देखेंगे कि R की वैल्यू क्या आती है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझें। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये कहलाती है AY, और ये AY दरअसल है A1y प्लस A2y। इसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये कहलाती है आपके पास AX इज इक्वल टू द A1x प्लस A2x। हमें AX चाहिए, AY चाहिए, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो आपका सिंध बोर्ड की बुक है, पेज नंबर 29, आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, 2 स्टेप्स अभी हमने आपसे बता चुके हैं कि हमने A1 को उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया, A2 को उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया, और उसके बाद जो थर्ड इज दैट कि ऐड X कंपोनेंट्स। अब हमें क्या करना है, जितने X कंपोनेंट्स थे हमने उनको ऐड करना है। तो द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग X एक्सिस इज गिवन बाय दीज आर द वैल्यूज। A1x इज इक्वल टू A1 cos थीटा 1, A1y इज इक्वल टू A1 sin थीटा 1, A2x is equivalent to A2 cos theta 2, A2y is equivalent to A2 sin theta 2. These are the values. In the vector form, AX is equivalent to A1x plus A2x, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, यानी कि ये आपके पास वेक्टर की फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे I लगाया है। I is a unit vector which is along x axis. Now, जब नॉर्मल वैल्यूज हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A1x एंड A2x, वी गेट AX is equal to A1 cos theta 1 plus A2 cos theta 2. It is equation number 1. Now the next step is that at y component the resultant vector along y axis is given by AY is equal to A1y plus A2y। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है, जब वेक्टर फॉर्म आएगी तो आप यहाँ पे J लिखेंगे। J is the unit vector which is along the I cap है और ये J cap है। Now putting the value of A1y and A2y, we get the next step is that we have to be find out the magnitude of resultant vector is given by A mod is equal to the under root of AX square plus AY square. So now write down the squaring equation 1 and 2, यानी कि दो, and then we add. Now squaring equation 1 and 2 and then add AX square is equal to A1x plus A2x whole square। या आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने इसको ओपन करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, whenever we substitute the values we get A1x square cos square theta 1 plus A2 square cos square theta 2 plus 2a1 cos theta 1 A2 cos theta 2। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने इसको ओपन किया। सिमिलरली ay स्क्वायर इज इक्वल टू A1y प्लस A2y का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया है। हमारे पास आ गया A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2a1 साइन थीटा 1 A2 साइन थीटा 2। अब हमने क्या करना था, पहले हमने क्या स्टेप था कि पहले हमने इन दोनों को स्क्वायर करना था और फिर इनको ऐड करना था। सिंपल एडिशन है। पहले हमने ax स्क्वायर लिख दिया प्लस के साथ ay स्क्वायर लिख दिया,
अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, a1 स्क्वायर कॉमन है। टेकिंग कॉमन a1 स्क्वायर, पहले आ गया cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर प्लस आया, इन दोनों में कॉमन था a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और इन दोनों में कॉमन है 2a1 a2 और जो रिमेनिंग टर्म्स वाज देयर। अब आपने करना क्या है कि यू नो अबाउट दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 2 से कोई मसला नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, जैसे यहाँ पे था ना, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा से, यानी कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज द आइडेंटिटी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। और हमने आपने पढ़ा था cos, जैसे पढ़ा था ना cos अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह थीटा 1 कर देते हैं और बीटा की जगह हम थीटा 2 कर देते हैं। अच्छा, तो whenever we simplify this one we get the mod of a, हमने इसका जो रूट था इस स्क्वायर रूट को, मतलब इसके स्क्वायर को हमने जब वहां लेके गए तो वो स्क्वायर रूट हो गया, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, और दरअसल ये भी मॉड है, a2 मॉड a1 मॉड a2 मॉड, सबका सब मॉड के अंदर मौजूद है, मैग्नीट्यूड आती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए हम हमेशा टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए एक्स की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन हमारा काम क्या है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स।